Hello students, I am Swarandeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic Chem. Today's our topic is about biomolecule chapter. The important questions of biomolecule. As you know, there is 4 topics in biomolecule chapter, that is carbohydrate, protein, enzymes and our nucleic acid. So in today's class we will take the important questions of carbohydrate and proteins. In next class I will give you some questions about the remaining two topics, that is nucleic acid and enzymes, vitamins and hormones. There is major topic is carbohydrate, then second one is protein and third one is vitamins. The mostly questions which will taken from the topic, that is carbohydrate and protein. So today's our class is about the important questions of protein and carbohydrates. Okay, let us start. Our first question is, how can you prepare sorbitol from glucose? That means how can you obtain the sorbitol? The first question, the question also can be asked like, what is the formula of sorbitol? So there is two questions you can attempt in on single question. There is glucose, CHO. As you know, the formula of glucose, CHO, CHOH 4 and CH2OH. We will have to do reduction to obtain sorbitol, because here aldehyde group convert into alcoholic group. That's why we will have to do a reduction. To do reduction, we will take sodium amalgam and water in the presence of hydrogen. Okay, हमें क्या करना है, ग्लूकोज और सोडियम अमलगम का हाइड्रोलाइसिस करना है, और यहाँ पे जो ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, डेट इज आवर सोर्बिटोल. ये क्या है, सोर्बिटोल है. देयर इज टू क्वेश्चंस, यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम द वन क्वेश्चंस. दो क्वेश्चंस आप एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लेंगे. पहला तो क्या कि sorbitol, what is the formula of sorbitol, that is sorbitol, and second, how can you prepare the sorbitol from glucose. Second question, what is the reaction of glucose with Tollens reagent? Tollens reagent, as you know, Tollens reagent, Benedict solution, these Spelling solution, these all are give the test with only and only aldehyde. आपको पता है कि किसके साथ में टेस्ट देते हैं, aldehyde में. You already taught this in your organic part, aldehyde, ketone, carboxylic acid chapter. उस चैप्टर में आप इसको कर चुके हैं, है ना, जो aldehyde वाला है कि aldehyde और ketone. There is also an important question in your organic chemistry, aldehyde, ketone and carboxylic acid, that how can you differentiate aldehyde and ketone? You can differentiate aldehyde and ketone on the basis of Fehling solution test, Benedict test, and as well as Tollens test. So here our aldehyde group. Next again, aldehyde group when react with toluene, AgNO3 plus NH4OH, when these both react, then silver oxide is formed. क्या बन जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है. ओके, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं, that is Tollens reagent. After when toluene reagent react with each other, the both compounds which are present in toluene, when they both react with each other, then we obtain silver oxide Ag2O. So we will take here Ag2O. हमने यहाँ पे Ag2O क्यों लिया है, क्योंकि जो सिल्वर ऑक्साइड है, जो टोलेन रिएजेंट है, उसके दोनों जो सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोथ रिएक्ट विद ईच अदर, आपस में पहले से ही रिएक्ट करके दे विल मेक silver oxide. That's why we will take Ag2O. Okay, that is, you can also write here Tollens reagent, direct name आप लिख सकते हैं, no need to write it Ag2O. Okay, आप यहाँ पे सीधा लिखिए टोलेन. Okay, इसके साथ में क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन. प्रीवियस के अंदर क्या हुआ था, रिडक्शन. इन नेक्स्ट वन देयर इज ऑक्सीडेशन. That means you can say, if glucose reduced, then sorbitol is formed, and if glucose oxidized, then gluconic acid is formed. Simple. जब उसका रिडक्शन होगा तो सोर्बिटोल बनेगा, और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, है ना.
किसी भी तरह से अगर वो क्वेश्चन को घुमा के दे तो हम इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये तो ऐसे हो ही जाएगा, इसके अलावा अगर वो घुमा के भी दे तो यू कैन डू दिस। ओके, COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया, वहां ऊपर हमने उसको किसमें कन्वर्ट किया था, रिडक्शन किया था, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन किया, अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड आल्सो सिल्वर मिरर इज formed because here we took Ag2O, there is silver oxide, so silver separated when oxidation, glucose is oxidized and then here silver oxide is behave as a oxidizing agent and its reduction takes place। इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। That's why we obtained silver mirror from the test with as we already taught it in our aldehyde test, okay, in organic chemistry. The next question, next write any one test of glucose। ग्लूकोज का टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का कोई एक टेस्ट बताइए, सीधा ही पूछ लेंगे कि राइट एनी वन टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, दैट इज मोलिस टेस्ट। अगर सीधा पूछा गया तो आप सीधा लिखिए मोलिस टेस्ट एंड वी ऑब्टेन्ड रेडिश ब्लू कलर। हमें कौन सा कलर ऑब्टेन होता है, रेडिश ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर उसने 1 मार्क्स में दे दिया है ना कि सेम ऐसे क्वेश्चन दे दिया राइट एनी वन टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, या फिर वो ऐसे ही पूछ ले राइट द मोलिस टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, देन वी हैव टू एक्सप्लेन इट। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, ग्लूकोज इन एक्वस मीडियम, ग्लूकोज किस में लेंगे हम, एक्वस मीडियम में लेंगे, प्लस में क्या लेंगे, अल्फा नेफ्थोल एंड साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, ग्लूकोज अल्फा नेफ्थोल एंड concentrated H2SO4 few drops and then we obtain the reddish blue color, जो ये प्रूव कर देगा that is a glucose। okay, next question, what is anomeric carbon, very important question कि anomeric carbon होता क्या है। देखो जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसको हम कह देते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। इसका जो एल्डिहाइड जैसे ये वाला था है ना, ये वाला ग्रुप था, ये वाला कार्बन था है ना, ये कार्बन कौन सा था अपना, कार्बन फर्स्ट था। तो इसी कार्बन को क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज इन इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं इसको, मैं इसको रीड कर देती हूँ, अगर मेरी हैंडराइटिंग पहचान में नहीं आएगी तो समझ में कम पड़ती है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन फर्स्ट differentiate the two cyclic hemiacetal forms of glucose with each other. This carbon atom is called anomeric carbon। जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा ना, देखो एक के अंदर ऊपर लग गया और दूसरा ऐसे के ऐसे बनाया और यहाँ पे जो H था OH था वो ऊपर इस तरह से उल्टा कर दिया है ना, तो इसे क्या कह देते हैं, इस कार्बन को क्या कह देते हैं, एनोमेरिक कार्बन कह देते हैं, जिससे हम इसका L और D फॉर्म डिसाइड करते हैं। ओके, तो इससे क्या बनेंगे, एनोमर्स बनेंगे। जो आइसोमर्स इससे बनते हैं ना, इसकी 2 फॉर्म बन जाएंगे, D एंड L फॉर्म है ना, D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज। तो इन दोनों जो फॉर्म्स है, these two forms are isomers of each other and that is called anomers because that is differentiate due to anomeric carbon। किसकी वजह से, दोनों में जो डिफरेंशिएट है यानी कि जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, एनोमेरिक कार्बन की वजह से। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एनोमर्स। ओके, आप सिंपल लैंग्वेज में भी इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं एज इट इज। ये डेफिनेशन हमें ऐसे लिखने की नीड नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा सेम लिखना चाहे तो भी है। अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं, द ग्रुप which in cyclic glucose, the carbon which is formed which decide the D and L form due to which, या आप कह सकते हैं due to which two glucose forms anomers is called एनोमेरिक कार्बन। जैसा भी आपको इजी लगे आप अपने वे में अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि कार्बन फर्स्ट जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। कार्बन फर्स्ट जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है उसे क्या कह देते हैं, एनोमेरिक कार्बन। एंड दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स, है ना। यहाँ पे भी अपने 2 क्वेश्चंस वी हैव डन। कौन कौन से, व्हाट इज
एनोमेरिक कार्बन एंड व्हाट इज एनोमर, एनोमर भी क्या है? अगर ऐसा भी पूछे तो हमें क्या लिखना है कि ड्यू टू कार्बन फर्स्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज इट्स पोजीशन at carbon first hydroxyl group change its position, that's why two types of isomers are formed, these isomers are called anomers. Okay, next देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ पड़ जाता है ना, ऐसा बहुत बार ये इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं जो कि थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको क्वेश्चंस को लेके आई हूँ इस तरह के कि आप अगर इसको लर्न कर सके तो ठीक है, समझ में आ सके तो ठीक है, नहीं तो इसको क्रैम कर लीजिए, यू कैन डू इट मग अप। ओके, आप इसको रट लो। ओके, नेक्स्ट देखो व्हाट राइट द हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ, हावर्थ भी बोल देते हैं, हावर्थ भी, समटाइम्स इट्स कॉल्ड हावर्थ। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने ये देख लेना है कि कार्बोहाइड्रेट है और साथ में कोई हावर्थ है, चाहे हावर्थ है, कुछ भी है। ओके, वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सिंपल 6 मेंबर रिंग है। ओके, 6 मेंबर रिंग है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको बनाने का सिंपल तरीका है कि ऐसे करो, ये बेंजीन अपन बनाते हैं ना, सेम वैसे बना लेनी, बस एक कार्बन को हटा के वहां पे क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, बस ऐसे ऐसे लगाओ स्ट्रेट लाइन, HOH HOH, सिंपल ऐसे चलते जाओ, OH H है ना, एक बार H को ऊपर कर दिया, एक बार OH को ऊपर कर दिया, ये लो यही किया ना, HOH HOH OH H HOH। ओके, और जो ये वाला है ना, इसको ऐसे करना है CH2, यहां पे क्या करना है CH2OH एंड H, बस है ना। ऑक्सीजन की जो ये वाला है ना, बिल्कुल यहाँ पे तो हमने HOH करना है, और जो ऑक्सीजन की इस साइड में है वहां पे क्या करना है CH2OH लगाना है, बाकियों के अंदर HOH। उनका अपन ने जो उनका वी कैन से इट्स ओरिएंटेशन वी हैव टू चेंज, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ओरिएंटेशन तो चेंज, 3D चेंज करनी पड़ेगी हमें। हम दो जो अपने हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वी आर नॉट अलाउड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन सेम पोजीशन बिकॉज देयर इज ग्रेट रिपल्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत ज्यादा रिपल्शन लगता है, तो उस वजह से हम दोनों को पास में नहीं रख सकते हाइड्रोक्सी ग्रुप्स को, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज दूर रह जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, देन HOH OH H H OH, वी हैव टू डू दिस। नेक्स्ट वन इज फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज के अंदर हमने क्या करना है, देखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ हैव 6 कार्बन्स इन इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले में कितने होते हैं, 6 कार्बन्स होते हैं, बट देयर इज द चेंज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देयर इज in glucose aldehyde group is present and in fructose there is alcoholic group is present in both sides. Okay, look at here fructose, that's why fructose convert into pyrrose, that means furane. Okay, कौन सी रिंग बन जाएगी, furane। 5 member ring is formed in the Haworth structure of fructose, whereas in glucose there is 6 member ring is formed in its Haworth structure. Okay, ग्लूकोज के अंदर कितने मेंबर रिंग बनानी है, हमें 5 मेंबर रिंग बनानी है, कुछ नहीं करना, बस ये बना देना है। यहाँ पे भी वो सेम ये लगाना है, बस दोनों साइड में CH2OH लगाओ। ओके, फिर H HOH OH H और ये OH, बस हो गया हावर्थ स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है अपनी सुक्रोज की। अगर आपको ये याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद हो तो इसको मगअप कर लो, है ना, वो कोई अपन को वो नहीं है, एग्जाम तक ही काम लेना है एक बार तो, है ना। देखो नेक्स्ट क्या करना है, सुक्रोज की अगर आ जाए आपको सिर्फ ग्लूकोज और फ्रैक्टोज याद रखनी है, और इतनी हार्ड एंड टफ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है 6 मेंबर ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर बना देना, एक कार्बन को हटाना, वहां पे ऑक्सीजन लगा देना। फ्रैक्टोज के अंदर यू हैव टू फॉर्म 5 मेंबर रिंग, रिमूव 1 कार्बन, रिप्लेस 1 कार्बन फ्रॉम बाय ऑक्सीजन, एक कार्बन को किससे रिप्लेस कर देना, ऑक्सीजन से। ओके, नाउ when you form the structure of sucrose, you have to make glucose structure and fructose structure and attach this with the oxygen। किससे अटैच कर दोगे इसको, ऑक्सीजन से। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना ली, फ्रक्टोज की बना ली, एंड देन अटैच इट विद ऑक्सीजन। देखो ये रही ग्लूकोज की पूरी, ये रही फ्रक्टोज की पूरी, और किससे जोड़ दिया, ऑक्सीजन से जोड़ दिया, बिल्कुल सिंपल, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। नेक्स्ट देखो माल्टोज एंड लैक्टोज, जो मेन इंपॉर्टेंट थी ना, जो क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, आई टेक दीज ओनली। ओके, तो देखो यहाँ पे
माल्टोस, माल्टोस के अंदर देखो हमने क्या किया, सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज और एक फ्रैक्टोज लिया था, तो माल्टोस के अंदर हमने क्या करना है, दोनों ही क्या ले ली, ग्लूकोज। देखो मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको सिर्फ क्या याद करना है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर से याद करनी है, बाकी कोई करने की जरूरत ही नहीं, उन्हीं से तो बनता है। ओके, लैक्टोज के अंदर क्या है, सेम वही, दोनों क्या है, ग्लूकोज है, बस डिफरेंस क्या है माल्टोज के अंदर एंड लैक्टोज के अंदर, माल्टोज के अंदर दोनों हाइड्रोजन देखो सेम साइड में, ओके, और इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन अलग साइड में। दैट मीन्स कि अगर वैसे याद रहे तो ठीक है, नहीं तो माल्टोज को तो ऐसे जोड़ना है, और जब आप लैक्टोज को करोगे तो ऐसे जोड़ना है, बस ये हो गया, ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट क्वेश्चंस many times asked in your exams, okay, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, जैसे हमने इनको अटैच किया है ना दो सैकेराइड को, ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जो एक एक है वो मोनोसैकेराइड है, दो बार जुड़ गए तो क्या हो गए, डाइसैकेराइड्स हो गए, है ना। जब दो मोनोसैकेराइड्स, when two monosaccharides units combine with each other, the bond which is formed during the combination of these two carbohydrate या monosaccharide units is called glycosidic bonds. Glycosidic, that means we have to need a bond to unit two monosaccharide units, okay, that bond is called glycosidic bond। नाम से पता चल जाएगा, यानी ग्लूकोज की दो यूनिट्स को, है ना, सिर्फ लर्न करने के लिए ट्रिक के हिसाब से ना, जरूरी नहीं ग्लूकोज में भी इट्स फ्रैक्टोज, है ना, कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज ऑल्सो। तो हमने सिर्फ इसको याद रखने के लिए कि हम भूले नहीं एग्जाम्स के अंदर, ग्लाइकोसाइडिक नाम से पता चल जाएगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की यूनिट्स को दो जोड़ना, दैट मींस ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड यूनिट, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड को आपस में कंबाइन करने के लिए। आई एम आल्सो रिटन हियर your definition, the oxide bond with which monosaccharide units are linked together in a disaccharide is called glycosidic bond, है ना, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, you can do this, okay। next, what is peptide bond, peptide bond क्या है, देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज टू अटैच टू ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, है ना, दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में कंबाइन किया एंड द डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, व्हेन टू प्रोटीन, पेप्टाइड प्रोटीन, इससे आप याद रख सकते हैं कि पेप्टाइड और प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। व्हेन वी नीड टू फॉर्म प्रोटीन, टू फॉर्म प्रोटीन we have to need a bond to attach to amino acids, दो अमीनो एसिड्स को आपस में अटैच करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा टू फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन को, है ना, ताकि प्रोटीन अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने के लिए कोई अट्रैक्शन बॉन्ड की नीड है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड peptide bond, to form protein to amino acids combine with each other, the bond by which these amino acids combine is called peptide bond। समझ में आया बात, यानी कि जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो किसका है, ग्लूकोज वाली यूनिट का, यानी कि किसका, मोनोसैकेराइड्स का, पेप्टाइड बॉन्ड किसका है, प्रोटीन्स वाले का, यानी कि अमीनो एसिड्स को अटैच करने का। Then look at here beta, the amino acids are linked together with CONH, CONH की जगह पे आप अमीनो एसिड्स भी लिख दो, and bond that is called peptide bond, when two amino acids linked with each other, then that bond is called peptide bond, okay। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, एक्चुअली CONH इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही है हमें, है ना, दैट इज आवर अमीनो एसिड, तो एक अमीनो एसिड तो ये हो गया, दूसरे वाले के अंदर क्या होता है कि देखो COOH एंड CH2NH2, तो देखो इसके अंदर क्या है, ये H हो गया और ये OH हो गया, तो NHCO बॉन्ड बन गया ना, NHCO, ओके, दैट इज कॉल्ड
when we have to attach two amino acid with each other, that is called peptide bond. Okay, समझ में आ गया. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है कि किसी जो अमीनो एसिड जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसमें जैसी इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा, वी हैव टू व्हेन वी पास द करंट इन दिस सॉल्यूशन इन व्हिच अमीनो एसिड इज प्रेजेंट, देन इट्स पीएच नेवर एवर चेंज. इसके पीएच के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट्स पीएच रिमेन्स अनअफेक्टेड. उसे क्या कह देंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. समझ में आई बात. देखो देखो क्या है, the pH of a solution at which amino acids remains unaffected on applying electric voltage is known as isoelectric point. Okay, उसमें हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी को या उसमें करंट देंगे, उसमें वोल्टेज देंगे, तो उस सॉल्यूशन में जिसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर उसकी पीएच के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What are essential and non-essential amino acids? Essential and non-essential. Essential और normally students इसको क्या समझ लेते हैं, essential which is essential for our body and non-essential which are non-essential for our body, which are not essential for our body, but that's not our answer. Okay, ये अपना आंसर नहीं है. essential हमें सभी अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है. ओके, essential का मीन्स है the amino acids which are not synthesized in our body. क्या हो रहा है, उनका सिंथेसाइज नहीं हो रहा अपनी बॉडी के अंदर, खुद ही बॉडी के अंदर नहीं बन रहे, और जो अपन डेली डाइट ले रहे हैं उसमें भी वो ज्यादा नहीं हो रहे, तो उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है. ओके, which are not synthesized in our body, that is called essential amino acids. जरूरी हो गए ना, क्योंकि वो खुद बॉडी तो बना ही नहीं रही है उसे, तो उसे क्या कह देते हैं, essential. Non-essential, the amino acids which are synthesized in our body are called non-essential. क्या हो रहा है कि अपनी बॉडी खुद ही बना रही है, अपनी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो उन्हें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे क्या कह देंगे, नॉन एसेंशियल. ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मीन्स ये नहीं है कि एसेंशियल जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी है और नॉन एसेंशियल जो नहीं है. ये बिल्कुल अपना आंसर नहीं है, है ना. कुछ बच्चे इसको नॉर्मली करके ही ये आते हैं, जितनी बार भी टेस्ट में दो, एग्जाम में आए तो उसको नॉर्मली वो कितनी बार भी बता दो यही लिखेंगे, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है. अपना आंसर क्या है, एसेंशियल जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, नॉन एसेंशियल जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज होती है. ओके, लुक एट हियर बेटा. The amino acids cannot be synthesized by the body are known as essential amino acids. The amino acids can be synthesized in the body are known as non-essential amino acids. Essential का देखो टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ है ना, ट्रिप्सिन, वेलिन है ना, एलिनिन, और क्या हो गया, लाइसिन, आइसोलाइसिन, अर्जेनिन है ना, ये हिस्टीडीन, ये सब चीजें हो जाती है. इसको याद रखने का तरीका होता है कि देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many essential amino acids are there? 10 essential amino acids are there. और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है याद रखने की, टीवी मिल पाथ. वैसे इतना डीपली नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एसेंशियल है कौन सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अगर पूछ लिया जाए तो जो इनसे स्टार्ट हो गए ना, कि टी से वी से, मतलब एमसीक्यू के अंदर अगर आपसे पूछा जाए है ना, आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो जिसकी स्पेलिंग इनसे स्टार्ट होगी ना, इन लेटर से, वो कौन से होंगे, एसेंशियल होंगे. इसलिए मैंने ये लिख दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द ज्विटर आयन ऑफ अमीनो एसिड्स. व्हाट इज ज्विटर आयन? ज्विटर आयन जिसके अंदर खुद के अंदर ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आयंस आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ज्विटर आयन. Here amino acid, two types of groups are present in amino acid, that is amino group NH2 which is basic in nature, whereas there is second one is COOH which is acidic in nature. That means is amphoteric कंपाउंड. ओके, ये कैसा है, एक एम्फोटेरिक है क्योंकि इसके अंदर ही बेस है और अंदर ही एसिड है. बेस NH2 which is a Lewis base, whereas COOH which is a एसिड. ओके, COH एक एसिडिक ग्रुप और NH2 क्या है, बेसिक ग्रुप है. बेस का काम क्या है, H को लेना है ना, H प्लस आयंस को ऑब्टेन करना, whereas COH ग्रुप क्या करेगा, H प्लस आयंस को डोनेट करने का
काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाला H है ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे इसकी नेचर कैसी हो जाती है, एम्फोटेरिक नेचर हो जाती है। Sometimes it's also asked that what is the nature of amino acids, that is amphoteric nature. What is amphoteric nature? Amphoteric nature in which the compound which react with acid as well as base is called amphoteric compounds, amphoteric acid base. Okay, so here our amino acid behave as a acid as well as base in its own, इस अपने अंदर ही क्या करता है, एसिड और बेस दोनों की तरह behave करता है. That's why that is called Zwitter ion, in which two ions are present, positive ion and negative ion. Okay, next one is what is denaturation of protein. प्रोटीन का denaturation क्या है? denaturation जैसी है उससे उसकी बजाय क्या हो जाना, उसका खराब हो जाना. denaturation हो जाना यानी कि उसका खराब हो जाना, टूट जाना. ओके, ब्रेक डाउन हो जाना. तो denaturation क्या होगा, जैसे उसको बॉयल किया है ना, जैसे एग है, एग के अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती है. व्हेन वी बॉयल इट तो इसका क्या हो जाता है, denaturation हो जाता है. ओके, ये अपन ने अपना पढ़ा है थर्मो के अंदर भी लास्ट ईयर, आपने 11th क्लास में यू हैव स्टडीड इट, दैट व्हाट विल हैपन व्हेन egg is boiled. What will happen with the entropy of boiled egg? As we know, there is disturbance increase because after boiling the egg, protein denaturized, the denaturation of protein will be takes place. That's why entropy increase. You have studied this in your 11th class. आपने पढ़ा है अपनी 11th क्लास के अंदर कि एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज देयर इज डिस्टर्बेंस इंक्रीज बिकॉज प्रोटीन डीनेचुराइज्ड है ना. प्रोटीन का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है. यानी कि जब किसी प्रोटीन को बॉईल किया जाता है या उसको एथेनॉल के साथ, एसिड के साथ, बेसिक के साथ, किसी के साथ में उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है, अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, कोंगुलेट हो जाती है, या हम कहें कि उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं ना, तो उससे क्या हो जाता है, वो खराब हो जाती है. दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. दैट मीन्स when protein are heated or treated with alcohol, acid, base, etc., then they are precipitated. That is called denaturation of proteins. Okay beta, the next question is write any one test of protein. पहले मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बताया था, ग्लूकोज का टेस्ट था, that is मोलिस टेस्ट, और ये क्या है, प्रोटीन का टेस्ट है ना. देखो, दो चीजों के अंदर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये देता है, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड और एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन होता है. दूसरा वो टेस्ट देता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर, टेस्ट किसका देता है, या तो ग्लूकोज का देता है और या फिर प्रोटीन टेस्ट देता है. तो ग्लूकोज के लिए तो आपने मोलिस टेस्ट लिखना है और प्रोटीन के लिए आपने जेंथोप्रोटीन टेस्ट. अगर नाम पूछे तो यू कैन राइट ओनली नेम जेंथोप्रोटीन टेस्ट. देयर इज protein when treated with concentrated HNO3 then it's convert yellow solution. कैसा solution हो जाता है इसका, yellow solution हो जाता है. प्रोटीन किसके साथ में, concentrated HNO3 के साथ में जब ट्रीट किया जाएगा तो इसका solution कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा. ओके, तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि अपने बायोमोलिक्यूल के दो टॉपिक में से कंप्लीट हो चुके हैं और मोस्टली आपका कवर अप हो चुका है. यहाँ पे बस एक चीज रह गई है, वो है कि स्ट्रक्चर किसकी, प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो सिंपल है. प्रोटीन की जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है उसके अंदर बस कुछ नहीं है, आपने ये ऐसे बनाना है ना, जो अपन ने बनाया था ना अभी CH2 है ना, ये इस तरह से फिर आपस में जुड़ा हुआ CH2, ये वाली प्राइमरी हो जाती है. टर्शरी के अंदर भी कुछ नहीं बनाना, ऐसे बनाना है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है. दिक्कत आती है सेकेंडरी के अंदर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये दो बनानी है, इसको ऐसे बनाना और यहाँ पे ऑक्सीजन को रखना, ठीक है, डबल बॉन्ड C, और फिर इसका दूसरा सेम वही चलते जाना, CH2 NH येलो, और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इन दोनों को जोड़ते हुए बना देना. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर आप देख जाना थोड़ा सा प्रोटीन की. बाकी अपना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग vitamins, nucleic acid and enzymes for you in next class. Okay, there is some important questions are pending, that is
विटामिन्स, हार्मोन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।